ہاں جی بتائیں کہ یہاں آج آپ نے ایک نئی روڈ کا کام سٹارٹ کیا ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں یہ موقع دیا کہ آج میں عوام کے بیچ میں آ کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے حاضر علیحدہ علیحدہ مرحلوں میں ہوتا ہوں۔ تو ان مرحلوں میں یہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ سلوا ٹو ٹھیر پور روڈ جو ہے، پچھلے سال بھی اس کی فنڈنگ کافی تعداد میں پیسے لائے تھے، میں نے کافی مقدار میں پیسے لائے تھے، لیکن اصل میں گاؤں والوں کی رسا کشی اور سیاسی کچھ چپکلش کی وجہ سے یہ روڈ جو ہے پچھلے سال نہ بن پائی، اور آج دیر آئے درست آئے۔ آج بھی اگر اس کا کام شروع ہو گیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں عوام ٹھیر پور سے یہ التجا کرتا ہوں، سلوا کی عوام سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے کام لے لیں۔ میں عوام کا خادم ہوں۔ مجھے جس علاقے سے ووٹ ملے نہ ملے، آج تمام لوگوں کے حقوق ہیں مجھ پہ، اور میں اللہ کے ہاں ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے دن رات لگا ہوا ہوں۔ آج اگر آپ کی یہ سڑک نہ بنے تو میں یہ کہتا ہوں کہ عوام ٹھیر پور کی بدنصیبی ہوگی اور عوام سلوا کی بدنصیبی ہوگی، کیونکہ میں جو بھی کام کرتا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں اور اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کے حقوق جو ہیں ان کو اگر میں نے ادا کیا تو مجھے لگتا ہے کہ میری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ قبول ہو جائے گا۔ اگر میں نے عوام کے تئیں کچھ گڑبڑ کی، ان کی خدمات میں کمی کسر چھوڑی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا سب سے بڑا مجرم ہوں گا۔ میں عوام ٹھیر پور سے یہ التجا کرتا ہوں کہ سیاسی جنجٹوں میں مت پڑیں۔ ابھی 2026 تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ دورہ جو ہے شوکت صاحب کا ہے، میرا ہے، آپ لوگوں کا ہے۔ جب تک میرے ہاتھ میں اقتدار ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ترقی میرے ذمہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ راتوں رات میں جو ہے آسمان توڑ کے زمین پہ نہیں لا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے 4 سال اور جو پہلے نیتا تھے، میں ان کے 25 سال سے انشاءاللہ میں اپنے 4 سال کا مقابلہ کروں گا۔ آپ میرے لیے دعا گو رہیں، اور اس سڑک کی شروعات آج ہوئی ہے، ٹینڈر جہاں تک ہوا ہے، میری یہ اس سال کوشش رہے گی، جیسے شوکت صاحب کا بھی بہت زور ہے کہ جہاں تک ہم یہ کام کریں تب وہاں تک ہم بلیک ٹاپنگ کا کام جو ہے، لک ڈالنے کا کام بھی تاکہ اسی سال کر دیں۔ میں کنٹریکٹر جو حضرات ہیں اور خاص کر اس علاقے کے ذمہ وار شوکت صاحب ہیں، جو یہاں کے سرپنچ ہیں اور پوری مینڈر کے سرپنچ ہیں، صدر ہیں یہ ہمارے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا باہر بھی تو دخل اندازی ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ میں، لیکن خاص کر اس روڈ پہ یہ اسپیشل اپنی توجہ رکھیں گے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس آنے والے سال میں تاکہ ٹھیر پور تک اگر میری جہاں بھی خدمت کی آپ کو ضرورت ہے شوکت صاحب، میں صبح شام ان لوگوں کے لیے حاضر ہوں۔ میں عوام کا خادم ہوں، نہ کہ عوام کا میں وعدہ کرتا ہوں عوام سے کہ اگلے 2023 تک انشاءاللہ اگر آپ نے سیاست کے جمیلے میں نہ پڑے تو انشاءاللہ یہ 2023 میں آپ کی گاڑی جو ہے انشاءاللہ ٹھیر پور تک بلیک ٹاپنگ لک ڈال کے انشاءاللہ آپ کو سڑک دیں گے، جیسے شوکت صاحب کا بھی بہت توجہ ہے سڑک پہ کہ یہ روڈ جو ہے جلدی سے جلدی بننی چاہیے۔ اس سال انشاءاللہ کافی حد تک یہ کام جو ہم کریں گے، باقی جو بچا مارچ کے بعد
और भी काम करने जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पिछले दिनों हमने ये सलवा की 2 सड़कें पिछले साल स्टार्ट की, पिछले साल कटिंग हो गई, इस साल चलो मलबा वलबा डाल के रोड़ी बजरा करके इंशाल्लाह सुबह लुक का काम स्टार्ट होने जा रहा है। अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारी आवाम की बदनसीबी पिछले साल ना होती तो आज पिछले साल मस्जिद तक अगर बन जाती रोड तो इस साल ठेरपुर पहुँच जाती। तो चलो फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आज भी अगर आपकी सहमति आपस में होगी, आप भाई भाई बन के रह रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी मुबारक की बात है। क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं हमेशा सुलह के हक़ में होता हूँ कि अवाम और जो अवाम के नुमाइंदे हैं इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आपके इलाके के पहले तो सरपंच, पहले नेता तो आपके सरपंच हैं। अगर आप और इनके बीच में कोई गलतफहमी है, मैं खुदारा आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अभी आप इनसे काम ले लें। अगर आपके कामों पे ये खरे ना उतरे तो बाद की बात में देखा जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि 4 साल मुझसे काम ले लो, अगर मैंने आपके काम ना किए तो आप अपने वोट के हकदार हो, आप अपने दिमाग के मालिक को, अपनी सोच के मालिक को, जहाँ आपने चाहा आप वोट दे देना। लेकिन अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि इस डेवलपमेंट को मत रोको, मत रोको और सियासी झमेलों में मत पड़ो। इस वक्त देखो आप अपना मतलब हासिल कर लो। कश्मीरी अवाम ने, मैं ये कहता हूँ कि कभी बीजेपी को कभी वोट नहीं किया है, लेकिन आज बीजेपी के ऑफिस में जाओ या बीजेपी के प्रोग्राम जब देखो तो मैं कहता हूँ बीजेपी के जलसों में मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी के जलसों में सबसे आगे कश्मीरी होते हैं। कहते हैं भाई इस वक्त तो हुक्मरान यही है, हमने इनसे काम लेना है। देखो कितने फास्ट लोग हैं, मतलब जीरक लोग हैं, वो अपने ज़हन इतनी वसत रखते हैं कि भाई हाल में अभी कुर्सी पे अगर शौकत साहब बैठे हैं तो इनसे दावत क्यों रखते हो। मैं अगर कुर्सी पे बैठा हूँ डिस्ट्रिक्ट की पे तो मुझसे काम लो। जब आपको लगा कि इन्होंने कुछ किया है तो दे देना वोट, तो अगर नहीं लगा कोई नहीं देना तो हम जैसे पहले भी आपसे कोई गिला नहीं किया और आइंदा भी नहीं करने वाले। मैं आपको इल्तिजा करता हूँ, मैं आपको हाथ जोड़ के वास्ता अल्लाह का देता हूँ कि अपनी तरक्की को मत रोको और सियासी झमेलों में मत पड़ो और अपनी तरक्की कराओ। इंशाल्लाह बंदा एक खादिम आपकी सुबह शाम आपके लिए हाजिर है। मैं आप में से हूँ, आप मुझ में से हैं, आप मेरे भाई और रिश्तेदार हो, बहुत करीबी रिश्तेदारी है ठेरपुर में मेरी। लेकिन किसी की अगर दिल शिकनी हुई तो मुझे माफ़ करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम। हाँ जी, सरपंच साहब बताएंगे ये जो ठेरपुर वाली रोड का काम स्टार्ट हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ठेरपुर वाली रोड जो है वो ऑलमोस्ट 2017-18 में हमने शुरू की थी और इसका अर्थ कंप्लीट हुआ था। उसके बाद इसमें हमने पंचायत से भी कुछ पैसा लगाया इसमें, इसलिए कि कम से कम वहाँ पे ट्रैक्टर, ट्राली और छोटा मोटा सामान जो है वहाँ पे वक्त पे पहुँच सके। तो इंशाल्लाह इसको हमने कामयाब किया 3 किलोमीटर तक। अब की बात जो है इसका बाकायदा टेंडर हुआ और 2-3 जो है अलाटमेंटें हैं इसमें। और हमारी यही है कि चेयरमैन साहब भी यहाँ हैं और मैं ये कहूँगा कि कोई इख्तलाफ सियासी नहीं है, हम सब एक हैं और हमारा मिशन यही है कि जिस तरीके से भी हो किसी का काम हो जाना चाहिए। कल की बात कल देखी जाएगी, मतलब हमें किसी से कोई अदावत नहीं, कोई रंजिश नहीं है, हम सब एक हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठेरपुर के लिए जितना मुमकिन मुझसे हो सका मैं उससे 4 गुना बढ़ के काम करूँगा इंशाल्लाह। और जितना मुमकिन मैं कहूँगा इशफाक साहब से हुआ ये भी 4 गुना 8 गुना बढ़ के मुझसे काम करेंगे। क्यों यार, यहाँ पे हमने वोट दिए हैं, जावेद राना साहब का भी 22 साल उनको भी वोट दिए हैं, आपको भी वोट दे के आपको डीडीसी बनाया, ये आपकी हिम्मत है कि आप वाइस चेयरमैन बन गए, मुझे लोगों ने वोट दिया मैं सरपंच बनाऊँ। अब ये है कि हकूकुल इबाद में मैं ये कहूँगा कि उस वक़्त मैं बरी हो जाऊँगा जब ठेरपुर पे गाड़ी पहुँच जाएगी, चाहे वो 1 महीने में पहुँचे चाहे वो 3 महीने में पहुँचे। इशफाक साहब का लाना इसलिए है कि ये ब्लैक टॉप आपको करानी है, इसको आप इंशाल्लाह मैं छोड़ने वाला नहीं, इसको आगे लेके 4.5 किलोमीटर तक जो है मैं छोटी से छोटी गाड़ी जो है ना नैनो भी जब ठेरपुर पर चढ़ जाएगी उसके बाद मैं अपनी गाड़ी छोड़ूंगा। और ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इसलिए ये गाड़ी मंगवाई है ताकि हमें जो है अब हुकूकुल इबाद से मैं भी बरी हो जाऊँ, आप भी बरी हो जाएं और जिस लीडर ने पहले किया वो भी बरी हो जाए। और इसको इंशाल्लाह हम उस तरीके से आपको रोड बना के देंगे। आप भी याद रखें, आप भी याद रखेंगे कि भाई क्या अगर पिछले दिनों हमें ये इस मामलात के अंदर एक सहमति होती, जो 2.5 किलोमीटर रोड हमने नक्का सुला में डाली है वो इस जगह की थी,
लेकिन अब ये ज़रूर हमारी कोशिश रहेगी कि अल्लाह के फजल करम से बस हकूक़ लिबाद से हम बरी हो जाएं, इंशाल्लाह। आपको जो है रोड वहाँ तक दे जाएं, और वो दिन अल्लाह करे आप भी सलामत रहें, मैं भी सलामत रहूँ, ये भी सलामत रहे, सब सलामत रहें, ताकि हमारी गाड़ियाँ जो है सीधी चली जाएं। इंशाल्लाह। शुक्रिया।